right? You have a shop in CP and you want to give your salesman only the code by which they can generate the invoice, right? Because you do not want to reveal your recipe to the world. However, you have to procure raw material, right? And for that you need to know what is the sales, right? So you have a separate table for your detailed of raw material, right? Now this table does not have sales. Now what you need to do, you need to merge this table with this so that you got to know that if A536 which require walnut and bed or dark chocolate, so if the sales is at a particular level, then you need to reorder the material, right? तो क्या करना होगा, we need to merge the table. So merging, as I told you yesterday, the merging means that you are merging two table horizontally, right? Good morning, Gagan. You need to merge two table horizontally. Now, to merge these two tables, you need to have a column, a common column in both the tables, right? Then only you will be able to identify which row should come after this from this table, right? So what is required in this case? A common table, a common variable, right? All right. So the syntax for merge is merge left table and the right table. So we call left table, first table or second table, we call them left table and right table. And we also require a by statement. By means by which variable you want to merge these tables, right? And your two table would be merged. But since you have used by statement over here, and I told you whenever you use a by statement, your data should be sorted by this particular variable whenever you using y in SAS. All right, so let me run this, and at the same point of time I'm also sorting my data by a variable name code, and this code is a common in both the tables. Excuse me. All right. Give me a second. All right, so similarly this second data is already sorted. Do you see that the code variable is sorted? All right, so let me run this as well. So this is my data for description table. So I have sales data, I have description data, right? And what I need to do, I need to merge these two tables.
And you by now you know the syntax, the data, the merge keyword, and the by keyword, and this. Now when you run this, right, this will give you a full join. What is join? So do you see that you have 7 codes in your sales table? You have 7 codes in your description table. So you have 7 data points in 7 rows in left table and 7 rows in right table. And when you are merging these, right, so this is my left table and this is my right table. What you're doing, you are merging and you are merging it completely, or this is known as full join. The data from both the table will come. All right, let me show you one more. So there are 7 rows over here and 7 rows over here, but your output contains 8 rows. Why? Because out of the 7, 6 are common, right? 6 rows are 6 code are common. This one is pending over here, one is remaining over here. तो एक यहाँ बच गया, एक यहाँ बच गया. जब आप इनको टोटल करोगे तो it will be 8, and that's why you are getting output as 8 rows. Are you able to follow? Yes, no? Okay, great. So your output contains 8 row of data, and this 8206 is not available in your right table, and that's why these two name and description, which are the column of your right table, are coming as blank. Similarly, M315 is not available in your sales table. That's why the sales column is coming blank for M315. All right. So let's discuss few more joins. So this is known as full join. Apart from full join, we also have other joins, right? This is known as not concatenation. No, Akash, this is not concatenation. This is merging or joining. People who has worked on SQL, yes, Kanishka has this inner join. The second one is left join, and the third one is, who will give the right answer? Third one. One, two, three. Very good. Left outer. Right. Right outer. And what is this? Full outer or outer? And this is full join. Right. So we have 7 different join, but most of the time you are either
using inner join or left join most of the time, but it doesn't mean that you cannot use other join or you don't require to use other join. But these are two most frequently used joins, right? And most of the database are, I will explain everything, right? So, you know, so whenever, so most of the database are designed in such a manner that you need to join inner, you need to use a inner join, right? Most of the data, तो इस तरह से efficiently डिजाइन होते हैं कि अब inner join से ही आपको काम चल जाए, right? Any question on the name of the joins, right? Now how they will work? So okay, let's understand on the basis of this data, let's understand what will be the outcome of this join. So कितना रो आएगा इसमें? 8, ये सबको पता है, right? What would the outcome of this? How many rows you will get over here? अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया. Very good. 6. How many over here? Second one, Gagan. Okay. 7. Very good. Perfect. 1. What about this? किसको ये बात समझ में नहीं आ रही? 7. 1 and 2. Gagan, you rocked. Okay, so Kanishka, you have a question that why there is 1. Okay, so how many data it contains? Okay, समझा देते हैं. So 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पर है, right? एक ऐसा है जो इसमें नहीं है, इसमें, और एक M315 जो आपके लेफ्ट टेबल में नहीं है. A206 आप अपना डेटा देखो, A206 आपके राइट टेबल में नहीं है और M315 आपके लेफ्ट टेबल में नहीं है. क्लियर है? और दोनों में 6 है. इफ 6 आर कॉमन, राइट, इफ 6 आर कॉमन, तो यहाँ पे इस एरिया में कितना आ रहा है? 6. इस टोटल एरिया में कितना है? 7. और ये आप अगर माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1. अब क्लियर हुआ? All right, so now conceptually things are clear, so let's understand how we can do it in SAS data step. So I will cover this topic through SAS and through SQL, SQL. All right, so अभी हम सिर्फ डेटा स्टेप की बात करेंगे. So full join क्लियर है? वो तो मैं सिखाने, वही तो सिखाने वाला हूं मैं. Let's understand how we can write inner join in SAS data step. तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले डेटा सॉर्टेड, कभी हमने बाई यूज किया है, सबको पता है ये चीज. नाउ इन द मर्ज स्टेटमेंट, राइट, for one table like sales, we give it a dummy name with the in operator as A.
तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स के अंदर जो भी कोड की वैल्यूज है उनकी सारी वैल्यू ए को असाइन हो जाएंगी और सबका वैल्यू ट्रू होगा। सिमिलरली सेकंड टेबल को हमने क्या बोला, इन इक्वल्स टू बी, मींस बी के अंदर इस डिस्क्रिप्शन टेबल के अंदर जो भी कोड होगा उस सबको एक वैल्यू असाइन होगी बी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू 1 रहेगी फॉर ऑल द कोड्स विच आर अवेलेबल हियर। राइट, अब हम नीचे क्या बोल रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, तो इस ग्राफ के अंदर वो कंडीशन कहां होगी जहां पे ए की वैल्यू भी 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है। वो कौन सा एरिया होगा, वो ये वाला एरिया होगा। ये यहाँ ए भी मौजूद रहेगा, यहाँ बी भी मौजूद रहेगा। इस पूरी टेबल के लिए ए की वैल्यू 1 है, इस पूरी टेबल के लिए बी का वैल्यू 1 है। ओके, एक बार फिर से, इस टेबल के ए का सारा वैल्यू क्या हो गया, ए के अंदर जो भी कोड्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो गया, 1। अब दूसरी टेबल है जिसके अंदर बी का सारा वैल्यू क्या हो गया, 1। ठीक है, अब आप एक कंडीशन लिख रहे हो, इफ ए इज इक्वल टू 1, मतलब ये सारी टेबल, राइट, बी इज इक्वल टू इस पूरी टेबल का दे। लेकिन आपने कंडीशन लगाई एंड, वो कंडीशन सिर्फ इस एरिया में फुलफिल होगी जहां पे ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इस एरिया में बी का वैल्यू क्या होगा, 0, और इस एरिया में क्या होगा, ए का वैल्यू 0, क्योंकि ए है ही नहीं यहाँ पे। यस, सो वाई व्हाइल यू आर राइटिंग इन इक्वल्स टू ए, तो आपका जो ये कोड है इन सबको एक डमी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ए इज इक्वल टू, सॉरी ये सेकंड टेबल, तो बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, बी इज, राइट। वैसे इसके सब वैल्यूज को क्या आएगा, ए का वैल्यू 1, तो यहाँ तो बी का बात ही नहीं हो रहा ना, तो बी का वैल्यू क्या होगा, 0, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, सबका बी का वैल्यू 1, लेकिन ए का वैल्यू इन सब के लिए क्या होगा, 0। तो इनर जॉइन में हम क्या बोल रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1 एंड साथ ही साथ v का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो वो ये कॉमन एरिया होगा। व्हेन यू रन दिस, हाउ मेनी रोज यू विल गेट, 6, एंड दिस 6 आर कॉमन वन। सो यहाँ पे क्या नहीं है, 8206 नहीं है और M315 नहीं है। 8206 यहाँ पे है, M315 यहाँ पे है। ऑलराइट, ओके, सो लेफ्ट जॉइन को कैसे लिखेंगे, वही सेस इन इज इक्वल टू 1, डिस्क्रिप्शन इन इज इक्वल टू बी, बाई कोड से मर्ज कर रहे हैं हम लोग,
एंड इफ ए इज इक्वल टू 1, जहां पे ए 1 हो, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इस पूरे लेफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट? सॉरी, ये थोड़ा आगे निकल गया, बट इतना बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? अब जो यहाँ पे मौजूद होंगे वो सारे आ जाएंगे, यानी 7 के 7 आएंगे। तो लेट्स रन दिस। नेम एंड डिस्क्रिप्शन ब्लैंक क्यों है? ये ब्लैंक क्यों आया? आकाश इसलिए नहीं कराया फ्रेंड, क्योंकि उस मर्जिंग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि राइट का डेटा चाहिए मेरे को, राइट टेबल से डेटा चाहिए। ये डेटा नहीं है मेरे पास, ये कैसे लेके आऊंगा? बात समझ में आई? अब ये डेटा लेफ्ट साइड नहीं है तो कोई नहीं, ब्लैंक आएगा। सॉरी, राइट साइड नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट आउटर जॉइन। तो क्या लिखूंगा कंडीशन? इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। एंड क्यों लिखा? इस पूरे में ए इज इक्वल टू 1 है, यानी पूरा डेटा, एंड बी का वैल्यू 0 कहां पे होगा? सिर्फ इस एरिया के अंदर। अब समझ में आया? एंड बी 0 0 क्यों लिखा? तो ए पूरा ले लो, फिर उसमें से सिर्फ वो ऐसा सेलेक्ट करो जहां बी का वैल्यू 0 है, और इस जगह में तो बी का वैल्यू 1 है ऑलरेडी, तो ये हम लेंगे नहीं। राइट, लेट मी रन दिस। ये 206 आना चाहिए था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट जॉइन। सबको पता है राइट जॉइन क्या लिखेंगे? बी इज इक्वल टू 1। तो राइट आउटर के लिए क्या लिखेंगे? कमेंट्स में प्लीज आंसर, योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लेफ्ट हो गया, राइट आउटर, सॉरी राइट हो गया, राइट आउटर और राइट। तो एक ही आ गया M315, इसका सेल्स नहीं है। ऑलराइट, एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, प्लीज राइट अ
इफ स्टेटमेंट फॉर योर आउटर जॉइन। आउटर जॉइन पता है ना, तो लॉजिकल है। लॉजिकल मैंने आपको सिखाई दिया, बनाओ उसका जो लॉजिक। ये वाला जॉइन का मेरे को इफ स्टेटमेंट जल्दी से लिख के दो। ओके, सब लोग दो इज इक्वल। ओके, आंसर्स प्लीज। टाइप मत करो, ऐसे लिख के देखो ना, लॉजिकली लिख के देखो, उसमें कोड रन करके क्या देखना, बगैर रन करके आंसर। कनिष्क का ये जो आपने लिखा है ये रन कैसे होगा? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, कैसे समझ में आएगा? कोई एंड नहीं, कोई और नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, ये क्या, मुझे नहीं समझ में आया। अगर नहीं, आधे ब्रैकेट है, मतलब आधी कंडीशन लिखी है क्या? ओके, ठीक है। और बाकी लोग, मोहित, नवीन, प्रमित, अरे ओके, नवीन, नवीन एंड मोहित। और ऐसे पूरी क्लास का एक ही आंसर आया, राइट? और नवीन और मोहित तो अपने आप को ऑन करके ब्रेकफास्ट करने चले गए। ओके, अच्छा, आप लोगों ने जो लिखा है ना उसको एक बार रन करके देखो। आंसर आए तो मेरे को भी बता देना। और जितने लोगों ने आज तक इस क्वेश्चन का आंसर पहली बार में सही दिया है, दे ऑल गॉट प्लेस्ड विद अ गुड पैकेज। तो इस क्वेश्चन की वजह से नहीं, बिकॉज दिस क्वेश्चन है बेंचमार्क टू चेक देयर लॉजिकल एबिलिटी। तो अभी तक का रिकॉर्ड है ये, मतलब टोटल 17 लोगों ने अभी तक सही आंसर दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का आंसर दिया तो सही है, बट 17 के 17 लोग वेल प्लेस्ड है। ऐसा नहीं कि ये आंसर नहीं दोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कि सक्सेस रेट जिन लोगों ने ये दिया उनका 100% स्ट्राइक रेट है। एंड द टाइम ड्यूरेशन जो मैं देता हूँ क्लास के अंदर, वो 3 मिनट के अंदर आंसर सही देना होता है। अब रन करके देखो, किसी का आंसर आता हो तो बताओ मेरे को।
ट्राई कर रहे हो आप लोग? अपने एंड पे ट्राई कर रहे हो? ओके। So you have the data, you have the सॉफ्टवेयर। ट्राई। रोकता कौन है? फांसी थोड़ा ना लगा दोगे गलत हो जाएगा तो। करके देखो, करके। ट्राई 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 थिंक। कैसे क्या, व्हाट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल।
किसी का नहीं हुआ अभी तक? कोशिश करो। अच्छा चलो, कुछ जो ट्राई किया वो तो एक बार शेयर कर दो, क्या ट्राई किया? तो कुछ तो ट्राई किया होगा, वही मेरे को एक बार लिख के तो बताओ, क्या क्या ट्राई कर लिया आप लोगों ने अभी तक? स्क्रॉल अप कर देते हैं। कहाँ पे दो बार? अरे इग्नोर कर दो, अगर गलती से दो बार लिख भी दिया है तो। आकाश, ये तो आंसर पहले भी आ चुका है।
आकाश के अलावा किसी और ने ट्राई नहीं किया अभी तक? इससे तो आंसर ही नहीं आ रहा ना, जो आप लोग आंसर दे रहे हो इससे तो आंसर ही नहीं आ रहा, राइट? एक के अलावा कुछ और भी तो ट्राई करो, आप एक ही आंसर पर अटके हो सारे लोग। शॉर्टेड है डेटा, उसको क्या करना है? शॉर्टेड ऊपर है। So let me show you the answer. There's no point holding it. So this is one of the answer, right? If a plus b equals to 1. Another logic, you can use this one. So what is missing in your answer is or. Now think why or, not and. समझ में आया? और क्यों होगा? एंड क्यों नहीं होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा इस एरिया में? ए प्लस बी इस एरिया में और इस एरिया में और इस एरिया में, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। पहला लॉजिक, ठीक है। सेकंड लॉजिक, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0, इसकी बात कर ली, ठीक है। बी इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू 1, इसकी बात कर ली। लेकिन एंड लगाने से क्या हो गया, ये चारों कंडीशन एक साथ मैच करें तो वो तो कभी मैच करेंगे ही नहीं। ये हो या ये हो, ये वाला लॉजिक हो या ये वाला लॉजिक हो, तो आउटपुट दे दो, ये मतलब हुआ ना। और एंड का मतलब ये भी हो, 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 तो चारों कंडीशन तो एक साथ मैच करेंगी नहीं कभी भी। ठीक है, गुड है जी। हाँ ना, कुछ तो बोलो। आया समझ में? नहीं आया? ब्रैकेट लगा दो, इट्स अ गुड थिंग, राइट? ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे। तो उसको रीड कर लेता है। की जगह और आना था, एंड की जगह।
सो ए प्लस बी वाले में ये था आकाश, ए प्लस बी वन कहाँ होगा? इस एरिया में ए की वैल्यू क्या है? 1। इस एरिया में क्या है? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, राइट। जब ए प्लस बी लिखोगे तो क्या आएगा? 2। और यहाँ पे क्या लिखोगे? ए 1 है, बी क्या है? 0। तो इसको ऐड करोगे ए प्लस बी तो क्या आएगा? हमेशा 1। सिमिलरली हेयर, तो ये नहीं आएगा ये वाला एरिया, राइट। तो ये चाहिए भी नहीं आपको। तो लॉजिक आप अलग अलग तरीके से यूज हो, मेरे को अभी 2 समझ में आते हो सकता है इसके अलावा भी आप कोई और लॉजिक बना लो। डन है? कुछ उसको सोच के देखो जो आप बोल रहे हो। उसको सोच के देखो आदित्य, जो आपने बोला अभी जो लिखा है ना, उसको सोच के देखो। नहीं, ये आप सोच रहे हो, इनर जॉइन नहीं है, इसका मतलब ये है ए इज इक्वल टू 1, यानी ए बिल्कुल ना हो एंड बी बिल्कुल ना हो। अच्छा, आपने लिखा नॉट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, तो ये तो सब जगह पे है। ये तो सारी कंडीशन फेल हो जाएंगी ना। हाँ ठीक है, बाकी डेटा फिर जब ये सिलेक्ट हो गया फिर बाकी डेटा बचा कहाँ? तो नॉट द इनर सर्कल, बट किसका नॉट? जब वो सेलेक्ट हो गया एरिया। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। हमारी इच्छा भी पूरी कर देते हैं, रुक जाओ एक सेकंड। इतनी मेहनत भी क्यों करूं? हाँ जी, क्या बोल रहे थे? बोलो। आप लिख रहे हो नॉट, किसका नॉट? नॉट ऑफ व्हाट? ये तो मैंने कभी बताया नहीं, आप इसको नॉट को इस तरह से यूज कर सकते हो, कहीं बताया मैंने इसको इंडिपेंडेंट यूज करने का? कंडीशन में हमेशा ऐसे बताइए, ए नॉट इक्वल्स दिस समथिंग, राइट। इफ के साथ नॉट कब बताया मैंने? नॉट इस तरह से आप लिख सकते हो, इफ नॉट ए लो, चलो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। पहली बात तो ओके एंड रन। दिस इज थर्ड वन। देखिए आपने लिखा इफ, राइट।
और आज जो आप बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे? नॉट, किसका नॉट? अभी ने लगा इफ ए इज इक्वल टू बी। और किसी दिमाग में कुछ आ रहा है? तो वी हैव द थर्ड लॉजिक, राइट? वेरी गुड। राइट, और कुछ, और किसी दिमाग में कुछ आ रहा है? इफ तो लिखना पड़ेगा ना ध्रुव, इफ नहीं देखो तो क्या ए नॉट इक्वल टू कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस मर्जिंग? नो क्वेश्चन? क्विकली 5 मिनट का ब्रेक लेके आओ and then we will start a new topic, right? And now our data steps is over. SAS के अंदर दोनों की छूट है आपके लिए, ठीक है? ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक, कितना हो रहा है टाइम अभी? 12 12:15 पे मिलता है, 7 मिनट का ब्रेक, ठीक है? चलो।
Right, welcome back after the break. So, the first procedure which we are going to learn today, though we already know about it, that proc print, right? So with proc print, right, you can get an output of the required variable by defining their name in the var statement. All right, let me run this. So you have name, you have age, and you have height, right? Now in the result, you see this ops, right? You can make any variable an id variable, which is the identifier or a kind of syntax of your, kind of serial number. Now if you are running this, right, you are getting this observation. Now if you want to get rid of this, you can write no ops in your proc print statement. This will not print your observation. Now your headings are coming horizontally, you can change them to vertical. These are the other two options which you can use. So ऑब्जर्वेशन हट गया, हेडिंग सारी हॉरिजॉन्टल हो गई. Next is your proc sort, right? So by using proc sort, you sort your data by one variable, right? So सारा फीमेल पहले, मेल बाद में. Now in your sorted data, right, in your sorted data, अभी शॉर्ट में बताऊंगा डिटेल में, राइट? अभी शॉर्ट. In your sorted data, if you print, if you use by for that particular sorted variable, this will not include your this variable in the output, and this will divide your data or classify your data on the basis of that particular variable. तो आपका ये जो वेरिएबल है जेंडर, वो इंक्लूड नहीं हुआ इसमें, राइट? साथ में उसने हर इंस्टेंस उस वेरिएबल के अलोंग सारा डेटा कैटेगराइज करके आपको आउटपुट दिया है. Now if you just want to get output of numeric variable, in the var statement you can define numeric. So this will print your age, height and weight. And if you just want output of your character variable, right, so you can write underscore char underscore. Now this will give you output of name and gender, right?
Now you can get a column wise sum of your data with the sum keyword, and it will only give you output for numeric column, right? And with the help of n, this n, right, will give you count of your rows. So n is equal to 19. So this is small introduction of your proc pin. So every procedure in SAS have multiple functionality, right? And they are designed for give you a certain output, but you can customize that output by using multiple keywords, right? Different keywords. So next procedure which we are going to cover is proc contents. Do you remember we used this procedure before as well? पहले भी यूज किया था प्रोसीजर. कब यूज किया था? किसी को याद है? Do you remember descriptor portion? Proc contents procedure. Descriptor portion याद है? Data portion, descriptor portion. Yes. So now what we are doing? Let me remove this first. All the options. So if you run proc contents on your data, by default it will give you the contents of your data set and your details of your variable. However, that variables are listed in the order of alphabet. So they are alphabetic list of variable and attributes. They are not in the order of creation. तो एज पहले दिखाती है, जबकि पहला वेरिएबल आपका क्या है? नेम. So to control this output we use one keyword which is var num. क्या यूज करेंगे? var num. तो वेरिएबल नंबर से इसको आउटपुट दो मेरे को. तो इफ यू सी नाउ दीज वेरिएबल्स इन क्रिएशन ऑर्डर, कैसा आउटपुट मिल रहा है? वेरिएबल जिस ऑर्डर में क्रिएट किए गए हैं. All right, you can get this out in some data. इसको आप डेटा सेट में स्टोर करा सकते हो. जो ये आउटपुट आया है ना, आपको उसको डेटाबेस में स्टोर पर क्यों कराना है? सॉरी, मैं इक्वल टू सिंबल लगाना भूल गया था, इसलिए वो एरर आया. राइट, तो एक टेबल बनेगी जिसका नाम होगा कंटेंट इन माय वर्क लाइब्रेरी. So this will help me to understand my tables in a better way. अगर मेरे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, राइट, उसके बारे में पता करना है तो क्या करूँगा? डेटा को एक टेबल में स्टोर करा के फिर उसको स्लाइस एंड डाइस करके देख लूंगा. अगर 100 वेरिएबल यहाँ होंगे एक साथ लिस्ट में तो मेरे को उतना साफ नजर नहीं आएगा. राइट, so this is proc contents.
Now let's talk about the proc frequency. So your first statistical procedure is proc frequency. What is frequency? What is frequency? Number of occurrence, right, of a particular category. So by default, proc frequency will give you frequency of all the variables. So name, सबका frequency 1 है. Gender 9 and 10, age, height, weight, बट आपने तो फ्रीक्वेंसी मांगा था, लेकिन इसने साथ में क्या दिया, परसेंटेज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. चलो मैं पहले इसमें समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा जेंडर वाले में. सो फ्रीक्वेंसी 9 एंड 10, व्हाट इज द परसेंटेज, कि टोटल डेटा के अंदर इस पर्टिकुलर कैटेगरी का परसेंटेज क्या है. तो 9/19. एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 4 11, sorry 14, 14 + 4 18, and 18 + 1 19. This is a cumulative frequency. Similarly, cumulative frequency का percentage. So by default proc का frequency आपको क्या देता है, frequency, percentage, cumulative frequency and cumulative percentage. Now you can design your output by using table statement, or you can customize your output. Now we are creating two-dimensional table, which is gender and age के frequency निकालते हैं. So let me run the code. So gender wise age की frequency, so female 11 year frequency is 1. क्रॉस टेबुलेट करा दिया डेटा. मेल जिसकी एज 11, कितना मेरे डेटा के अंदर 1. फीमेल जिनकी एज 12 है, कितने मेरे डेटा के अंदर 2. मेल जिनकी एज 12 है, वो कितने मेरे डेटा में 3. या इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, 12 ईयर एज वाले 2 फीमेल एंड 3 मेल है मेरे पास, राइट, एक ही बात है. Now let's understand what is second parameter. So second parameter is percentage, or second is set percent, then row percent and column percent. So 5.26 is your percentage, रो परसेंट इज 11.11, मतलब इस रो के अंदर कितना टोटल है इसका 9, तो 1/9 इज योर रो परसेंटेज. और कॉलम परसेंट क्या होगा, 1/2, ये कॉलम परसेंटेज. आउटपुट समझ में आया सबको? एनी क्वेश्चन ऑन द आउटपुट? Okay, no questions. Okay, now you can control, right, again you can control this output by using different keywords. So I'm writing the same tables statement, no call, no row, no percent. मतलब कॉलम नहीं चाहिए, रो में भी परसेंटेज नहीं चाहिए, और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी. कॉलम परसेंटेज नहीं है, अच्छा, अब आपने नो कॉल हटाया तो ये आपको क्या देगा, कॉलम परसेंटेज भी देगा. So this is how you can control your output.
कॉलम परसेंट आकाश, तो कॉलम ये है ना आपका, इस कॉलम के अंदर कितना डेटा है, तो इस कॉलम के अंदर कितना डेटा है, टोटल क्या है इसका 5, तो कॉलम परसेंट क्या 1/2, 1/2, इसलिए कितना है 50%, यहाँ पे 2/5, तो 40%, 3/5 60%, ये कॉलम परसेंटेज है। ओके, अब आपको ये पता करना है कि इस जगह पे मैं और क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, राइट। तो कुछ मत करना, कुछ गलती कर देना इस जगह पे आकर के, मान लो कि कुछ भी ऐसा लिख दिया कुछ भी, और मैं जब इसको रन करूंगा, राइट, इट विल थ्रो मी एन एरर। बाप रे बाप, ये तो लंबा रन हो गया। कुछ ऐसा, अब देखते हैं जल्दी रन हो जाएगा। हाँ, सो नाउ इट इज गिविंग एन आंसर कि आप ये सारी चीजें एग्री, ऑल, अल्फा, ये जितने नाम दिए, इतने तरह के स्टैट्स आप इससे दे सकते हो, मोर देन 50-60 स्टैट्स। नो कॉल, नो कम, राइट, नो फ्री। सो लेट्स से कि हमें काई स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको काई स्क्वायर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रन करेंगे, इट विल गिव यू द स्टैटिस्टिक्स फॉर टेबल। काई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के दे दिया, साथ में वार्निंग भी पढ़ लो, बता दिया आपने, टेस्ट तो कर लिया, ठीक है आपका आउटपुट, लेकिन इट्स नॉट अ वैलिड बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल। तो क्या जमशन है कि एटलीस्ट 5 डेटा पॉइंट्स होने चाहिए पर्टिकुलर कैटेगरी में। So you can get different statistics with a few click. You can store this, right? You can store the outcome of this chi-square in your any data. So let me show you this. और डेटा कहाँ स्टोर हुआ होगा, आपकी वर्क लाइब्रेरी के अंदर फ्रीक्वेंसी अंडरस्कोर डेटा के टेबल में। तो आप अपना आउटपुट स्टोर भी करा सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट 3 डायमेंशनल टेबल। तो अभी तक हमने 2 डायमेंशनल टेबल देखा, 3 डायमेंशनल टेबल आप भी बना सकते हो, लाइक जेंडर, एज एंड हाइट के साथ में आपने टेबल बनाना है, आपने सेलेक्ट किया ना, यू रन इट। लेकिन जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा सा, नहीं थोड़ा तो नहीं, काफी सारा कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। सो टेबल में क्या, एज बाय हाइट, कंट्रोलिंग बाय जेंडर फीमेल, राइट, एंड यू हैव एज ऑन रो साइड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है टेबल, बट यू कैन गेट ए 3 डायमेंशनल टेबल like this, but not advisable, not make much sense. Okay, so this is proc frequency. The next procedure which we are going to learn is proc sort. तो उसके अंदर एक डेटा बनाए टेस्ट बोल के, so proc sort data is equal to test by gender and I am saying descending age। तो पहले जेंडर को सॉर्ट करो,
फिर आप एज से भी सॉर्ट करो, बट एज कैसे रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है। तो पहले जेंडर से सॉर्टिंग होगी, फिर एज के साथ सॉर्टिंग होगी, बट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो जेंडर फीमेल एंड मेल, एंड एज क्या बोला है, डिसेंडिंग, तो एज घटती हुई आएगी, ये बढ़ता हुआ है। क्वेश्चन ऑन दिस सॉर्टिंग, अगर दोनों जगह को डिसेंडिंग करना है तो सम एरर, कहाँ पे एरर, ओके, is not accepting the bracket is first sorting this, but it is not sorting this. What you need to do, you need to write it again. Generally it does, why I'm not sure why it is not picking up that descending keyword or the bracket. Right, it requires a comma, so comma was missing. We are so you need to define it for every variable, right? By default, it will give you ascending. So this is one of the use of proc sort, right? But we use proc sort for some other purpose, and that is very frequently, right? So we use proc sort for removing duplicate values. इसलिए यूज करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाने के लिए। ऑलराइट, सो प्लीज पे अटेंशन हियर। सो डेटा हेल्प डॉट क्लास, जिसको सॉर्ट करना है, आउट टेस्ट वन, तो सॉर्टेड डेटा किस में आएगा, इसमें आएगा। फिर मैं लिखा नो डुप की, यानी जो की आप यूज करोगे उसका कोई डुप्लीकेट नहीं चाहिए। सो की इज दिस, वो वेरिएबल जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। एंड डुप आउट, जो डुप्लीकेट आउटपुट आएगा उसको कहाँ पे स्टोर कराना है, तो आउट में क्या स्टोर होगा, विदाउट डुप्लीकेट वाला डेटा, और डुप आउट में क्या होगा, डुप्लीकेट डेटा, राइट। सो लेट मी रन दिस। तो आपने की में क्या डिफाइन किया था,
जेंडर, तो एक जेंडर फीमेल और मेल का एक डेटा पॉइंट आ गया, लेकिन साथ में आपने डुप टेस्ट भी दिया था, तो डुप टेस्ट में सारा कुछ आ गया। ऑलराइट, if you want to increase the keys you can increase the key। तो अब जेंडर के साथ साथ कीज भी, एज भी होना चाहिए डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब फीमेल 11 एक बार आ सकता है, फीमेल 12 एक बार आ सकता है, मेल 11, क्योंकि जेंडर और एज का एक कॉम्बिनेशन आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता, तो सारा डुप्लीकेट। की हटके सिर्फ अभी की क्या, फीमेल 11 फीमेल 12 ये की हो गई, राइट। क्वेश्चन ऑन दिस। No question? Okay. So there another keyword which is no dupe. So no dupe क्या करेगा, पूरी रो को मैच करेगा। नो डुप की में क्या था, सिर्फ दो ऑप्शन चेक किए जाते थे, विच आर डिफाइंड इन द की। तो वही ऑप्शन चेक किए जाते हैं जो कि की के अंदर डिफाइंड है, लेकिन नो डुप में पूरा रो टू रो मैचिंग हो, जो कि इस केस में है नहीं। तो लेट मी रन इट। आपके पास पूरा डेटा है 19 का 19, राइट। अगर मान लो फिलिप्स एम 1672 और ये पूरा मैच करता तो ये एक हट जाता इसमें से। तो डेटा आपका पहले एज फिर जेंडर से सॉर्ट हुआ है। पहले एज फिर जेंडर, तो फीमेल पूरा सॉर्ट हो गया, उस फीमेल सॉरी एज पूरा 15 से सॉर्ट हो गया, उसके अंदर कितने फीमेल कितने मेल है वो सारा आ गया। सो लेट मी शेयर एन एग्जांपल ऑफ नो डुप। हाँ, उसके कनिष्क का मैंने नीचे एग्जांपल बनाया। सो आपके पास एक डेटा है ये वाला, जीत, ठीक है, एंड राम। अब इसमें राम 26 7000, राम 26 5000, राम 26 5000, तो ये दोनों डुप्लीकेट है, एंट्री पूरी की पूरी। तो रिमूव क्या होगा, नो डुप जब आप रन करोगे क्या आ गया, जीत दोनों आ गया, राम के 3 इंस्टेंस आ गए, लेकिन पूरी रो मैच डुप्लीकेट कोई भी नहीं है, तो हटाया गया। राम 26 5000 ये वाला डुप्लीकेट था, तो पूरा का पूरा रो हट गया। तनिष्क का समझ में आया नो डुप का मतलब? Next procedure is format, and then here means okay. So last format for today's last procedure for today is proc format. तो इसको समझते हैं।
तो फॉर्मेट सबको याद है, हमने यूज किए थे डॉलर कॉमा ये सब अपने डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, वो थे सारे सैस के डिफाइंड फॉर्मेट्स, राइट। यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्मेट, आप अपने फॉर्मेट्स खुद बना सकते हो विद द प्रोसीजर proc फॉर्मेट, राइट। फिर एक कीवर्ड लिखना है वैल्यू। अगर आपका फॉर्मेट आपको कैरेक्टर वैल्यू वैल्यू के लिए बनाना है तो आप डॉलर से लिखो, आगे स्टार्ट करोगे तो डॉलर GN, तो मैंने एक नाम बनाया, GN मीन जेंडर, में अपना आइडेंटिफिकेशन है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। तो डॉलर किस लिए लगाया, ताकि मैं कैरेक्टर वैल्यू के लिए फॉर्मेटिंग बना सकूं। तो M का फॉर्मेट बनाया मेल, F का फॉर्मेट बनाया फीमेल और रन कर लिया। तो इसका आउटपुट क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ नोट्स होगा जिसमें लिखा होगा दिस हैज बीन आउटपुट। तो आपका एक फॉर्मेट तैयार हो गया जिसको आप यूज कर सकते हो। तो लेट्स यूज इट। तो procprint डेटा इज इक्वल टू seshelp डॉट क्लास वाले डेटा में हमने इस फॉर्मेट को यूज करना है जेंडर वेरिएबल पे। तो जहां जहां भी आपको मेल दिखाई देगा तो M की जगह मेल आएगा, F की जगह फीमेल आएगा, ये फॉर्मेट है। लेकिन क्या ये डेटा चेंज हुआ है, तो डेटा चेंज हुआ, डेटा में अभी भी M और F ही लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हो, मानते नहीं हो? अच्छा ठीक है, दिखा देता हूँ मैं, सेल्फ डॉट क्लास है ना। ये लो जी, अभी भी डेटा के अंदर M और F ही लिखा हुआ है। देखिए आपको दिखाई क्या दे रहा है, मेल एंड फीमेल, बिकॉज ऑफ फॉर्मेट। तो आपने फॉर्मेट खुद से बनाया और खुद से ही उसको यूज किया। आप नंबर के अलावा भी आप रेंज का भी फॉर्मेट बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने 0 से 12 के बीच एक रेंज डिफाइन की जिसका फॉर्मेट दिया हमने यूथ, एंड फॉर्मेट का नेम क्या है, AG। 13 से 15 मैच्योर, 16 एंड हाई ओल्ड। हाई किस लिए यूज किया, 16 एंड अबव लिखते हैं ना, उसके लिए। देखिए इस फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ है, ऊपर वाले फॉर्मेट कुछ कमी है इसमें। ऊपर वाले फॉर्मेट में कुछ कमी लग रही है। तो ऊपर वाले फॉर्मेट में एक कमी है, ये फॉर्मेट का जो रेंज आपने डिफाइन किया वो एग्जॉस्टिव नहीं है। तो अगर मान लो अभी तो आपको पता है आपके डेटा के अंदर 12 और 13 ही है, अगर 12.5 होगा तो क्या होगा, ये तो लॉजिक फेल हो जाएगा, राइट। तो अपने लॉजिक को एग्जॉस्टिव बनाने के लिए यू कैन यूज दिस थिंग। सो लो -50 मतलब नीचे कोई भी वैल्यू हो, ऊपर 50 तक हो। अब नेक्स्ट लिखा मैंने लेस देन, सॉरी 50 से बड़ी एंड 100 के बराबर। तो जैसे 50.1 होगा इस रेंज में आ जाएगा, और कहां तक, 100। तो ग्रेटर देन 100 एंड हाई कितना भी ऊपर, एंड यू कैन रन इट। आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मेट बनाया आपका। फॉर्मेट यूज करने के लिए लेट मी पुल उसका सेम डेटा, और मैंने फॉर्मेट यूज किया, फॉर्मेट जेंडर के लिए जेंड, एज के लिए एच, वेट के लिए WT। जेंडर चेंज हो गया, एज चेंज हो गई, और क्या चेंज किया, वेट चेंज हो गया। देखो so we define format with value keyword। तो हम पहले फॉर्मेट डिफाइन करेंगे एंड फिर इसको कंज्यूम या यूज करेंगे। ठीक है जी। आउटपुट ये देखो, आउटपुट
जेंडर के लिए आपने मेल फीमेल फॉर्मेट बनाया था, एज के लिए मैच्योर और यूथ और ओबीस ऐसा बनाया था, इसके लिए ओबीस फिट ऐसा करके बनाया था। क्या डेटा चेंज हुआ है? द आंसर इज नो। डेटा तो अभी भी इस क्लास का वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ? फॉर्मेट। और फॉर्मेट आपको खुद से बनाना आता है। ठीक है, सो विद दिस we have started our learning for procedures, right? We will learn in the next class we will learn more statistical procedures, and please practice this, right? practice के बिना सब कुछ अधूरा रह जाएगा। all right, any question? Okay, I take this silence as no question. So guys, keep practicing, stay safe and stay healthy. Bye bye, take care. नेक्स्ट वीक क्या है? हो दिवाली वाला वीक है क्या? ओ नहीं होगी क्लास सैटरडे, ये नहीं होगी क्लास 14-15। सो वी विल मीट ऑन दिस वीक। सो दिस इज इट पॉसिबल, सॉरी सारे लोग हैं, इज इट पॉसिबल हम अपनी क्लास का टाइम 3 घंटे कर लें? 10 टू, अभी क्या 11 से 1 है ना, 10 to 1। तो मैं आपका कोर्स फिर यहाँ कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट। और अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो एक क्लास की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे नवंबर में। विद इन नवंबर आई विल बी एबल टू कंप्लीट योर कोर्स। 3 घंटे पढ़ना है? नहीं, हाँ ना? 11 to 2 नहीं, मेरा 1 बजे से क्लास चालू होता है गगन, तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं पढ़ना, 11 बजे से पहले नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? आ सकते हो, इट्स फाइन, आई एम जस्ट आस्किंग इफ योर गाइस आर फाइन देन ठीक, नहीं तो 11 to 1 ठीक है, ठीक है, चलो ओके बाय बाय एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। क्रैकर फ्री दिवाली मनाना, ठीक है? पोल्यूशन बहुत हो चुका है, इमोशंस को आउट रखना, दिमाग यूज करना, लोगों की बहका में मत आना। फायर क्रैकर्स की एक ही त्योहार है, चलाना चलाना है, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।